सभी को नमस्कार। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने अपने माइक्स म्यूट करके रखें। ये आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे बच्चों के साथ साथ बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी हम मिल रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आया था किसी एक बच्चे का कि मैम बांग्ला में भी कुछ बोलिए ताकि हमारे दादा दादी को समझ में आए, तो मैं कुछ बांग्ला में भी बोलूँगा, कुछ हिंदी में भी बोलूँगा ताकि सभी को समझ में आए। আজকের দিনটা ভীষণই ভালো আমার জন্য, সবার জন্য, স্কুলের প্রত্যেকের জন্য। কারণ যারা এই সমাজ সংসারটাকে তৈরি করেছেন সেই রূপকারদের সাথে আজকে আমরা কথা বলছি। যে কোনো সমাজের জন্য এই দাদা ঠাকুরদা ঠাকুমা এদের ইম্পর্টেন্স ভীষণ। তাদের সারা জীবনের এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে তারা সমাজ তৈরি করেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের জীবনে দাদু দিদা ঠাকুরদা ঠাকুমা তাদের অবদান অনস্বীকার্য। ছোট ছোট গল্প ছোট ছোট গানের মাধ্যমে জীবন তৈরি করা। আমিও ছোটবেলায় আমার দাদু ঠাকুরদা ঠাকুমা দিদা এদের কাছ থেকে ছোট ছোট গল্প শুনতাম, ছোট ছোট গান শুনতাম। আমার মনে আছে আমার জীবনে অনেক গল্প শুনেছি যার উদ্দেশ্য একটাই মাত্র ছিল, যাতে আমার চরিত্র নির্মাণ হয়। এই ছোট বাচ্চাদের চরিত্র নির্মাণে, ছোট বাচ্চাদের ব্যবহার শেখানোতে এই গ্র্যান্ড পেরেন্টসদের যে অবদান আছে তা আজকে না বললেও সবাই বুঝতে পারবে। क्योंकि इन दादा दादियों का जो भी रोल है ये छोटे बच्चे भी समझते हैं। मुझे लगता है जब स्कूल से घर लौटते हैं तो सबसे ज्यादा खुश तो दादा दादी या नाना नानी ही होते हैं। पेरेंट्स से भी ज्यादा खुश वो लोग होते हैं कि ये छोटा बच्चा घर लौट गया, और ये बच्चे भी जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स से चिपक जाते हैं कि हम वो लौट के आ गए। इनमें जो जान है, इन छोटे बच्चों में जो जान है, वही जान उनमें भी देखा जा सकता है जब ये दोनों एक साथ बात करते हैं। इसलिए समाज में, स्कूल में, ये समाज बनाने में, छोटे बच्चों का भविष्य बनाने में इनको हम भूल नहीं सकते। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन जो स्कूल ने किया है, इसके पीछे रीजन भी यही है, कारण भी यही है। আমরা চাই আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আমরা চাই আপনারা বাচ্চাদের পাশে থাকুন, তাদের জীবন তৈরিতে সাহায্য করুন। খুব ভালো হতো যদি আপনাদেরকে আমরা সম্মুখে পেতাম, সামনে পেতাম, স্কুলে যদি ডাকতে পারতাম, আপনাদের সাথে দুটো কথা বলতে পারতাম, আপনাদেরকে কিছু দিয়ে যদি আমরা সম্বর্ধনা জানাতে পারতাম, খুব ভালো হতো। কিন্তু এমন পরিস্থিতি কোভিডের যে আপনাদের জীবনেও আমি একটা কোনো রিস্ক চাই না, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের জীবনেও একটা রিস্ক আমি চাই না। তাই আমরা যাতে একে অপরকে ভার্চুয়ালি ক্যামেরার মাধ্যমেই দেখতে পাই, যাতে ক্যামেরার মাধ্যমেই কথা বলতে পারি, তার একটা ব্যবস্থা করেছি। গ্র্যান্ড পেরেন্টস ডে স্কুলের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই কারণ আপনারাও কোনোদিন স্কুলে গেছেন, আপনারা সমাজ দেখেছেন, সংসার দেখেছেন, অনেক অনেক আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স। সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে হয়তো স্কুলটাকে আরো একটু উন্নত করতে পারি আমরা।
তাহলে স্কুলের বাচ্চাদের জীবনটাকে যদি ভালোবাসতে পারি, ভালো তৈরি করতে পারি, বাচ্চাদেরকে ভালোবাসতে পারি, সেই রাস্তাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের একটা অবদান থাকেই। সেই জন্যই আমরা চাইছিলাম আপনারা আমাদের সাথে আসুন। আর বাচ্চাদের ভীষণ ভালো লাগবে কি তাদের ঠাকুরদা ঠাকুমা দাদু দিদা তাদের সাথে স্কুল এসছে। বাবা মা তো অনেক সময় আসেন, আপনারা খুব কম সময়ই আসেন। আপনারা যদি আসেন ওদের সাথে, আপনারা যদি শিক্ষকদের সাথে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলেন, তো বাচ্চাদেরও ভীষণ ভালো লাগে। আমরা তো একটা বড় পরিবার, সেখানে আমরা আছি, শিক্ষকরা আছেন, বাচ্চারা আছে, বাচ্চাদের বাবা মা, আপনারাও আছেন। এই বড় পরিবারের একটা পার্ট আপনারা। সেই বড় পরিবার যদি একসাথে কোনোদিন বসে এক কাপ চা খায়, তো মনে হয় কি আমরা একটা বিশাল বড় পরিবারের পার্ট, আমরা একসাথেই আছি, ঐক্যবদ্ধতাও বাড়ে। আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, যখন আপনাদের ইচ্ছে করবে স্কুলে এসে যাবেন। যদি একটু কোভিডের পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যায়, স্কুলে এসে যাবেন, টিচারদের সাথে দেখা করবেন, আমার সাথে দেখা করবেন, ভালো লাগবে। আপনাদের জীবনের যত এক্সপিরিয়েন্স আছে সেগুলো দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, যাতে আমরা স্কুলটাকে আরো ভালো তৈরি করতে পারি। আবার আমি স্কুলের তরফ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা ক্যামেরার মাধ্যমেই হোক না কেন আমাদের সাথে জুড়েছেন, আমাদের খুব ভালো লাগলো, আমরা ধন্য হয়ে গেলাম। এই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য আপনাদের আশীর্বাদ আমরা আগেও চাইব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। Good afternoon and namaskar to everybody attended on this virtual platform of Grandparents' Day celebration program. The most honorable principal sir respected today's special guests, grandparents and learned teachers. We have tried our level best for virtual live Grandparents' Day celebration under the situation of COVID-19 pandemic. This is a wonderful opportunity for me to honor grandparents on the occasion of Grandparents' Day on behalf of principal, teachers, students and the entire Vidyalaya family KB number 1 Ishapur. I extend my heartfelt thanks and gratitude to all the grandparents on this auspicious moment. Grandparents are the heritage and are our essential members of families and communities. That's why a special day in the name of grandparents is celebrated every year to honor them in KBS as well as in KB number 1 Ishapur under Common Minimum Program. Grandparents are a family's greatest treasure, the founders of a loving legacy, the greatest storytellers, the keepers of traditions that linger on in cherished memory. Grandparents are the family's strong foundation. Their very special love sets them apart. Through happiness and sorrow, through special love and caring, grandparents keep a family close at heart. Grandparents are kind, helpful, and generous people. Grandparents offer an unconditional love that is different from that the parents provide.
grandparents have a major role to play in children's mental development. From the time the grandchild is born, grandparents mold the child's personality by passing on age-old values and traditions. They lead them to the right path, holding their hands at right step, rectify them in if they do wrong, encouraging them in their tough times, inspiring them to be the best forever. I pray to Almighty for happy and healthy life of grandparents. May God bless them. All the best. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. आदरणीय प्राचार्य महोदय, हेडमास्टर महोदय तथा शिक्षक मंडली, मैं लावण्य चौधरी क्लास 5B में पढ़ती है, उसका मैं नाना बोल रहा हूँ। आज मुझे ये अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ के भी नंबर 1 इच्छापुर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये कहानी मैं 50 साल हो गया, आज गोल्डन जुबली है, तो ये मैं कहानी आपको दोहरा रहा हूँ। ये मेरा आप बीती है। सन 1971 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक नोटिस चिपका हुआ कि जो फौज में जाना चाहता है तुरंत पनागढ़ मिलिट्री बेस में रिपोर्ट करे। तो मैं चला गया वहाँ, बहुत खुश था मैं। वहाँ जाने के बाद उसके दूसरे ही दिन मुझे कृष्णनगर के बहादुरपुर एरिया में लेके गया। कृष्णनगर बहादुरपुर, वहाँ 15 दिन का सिर्फ ट्रेनिंग था। उसके बाद मुझे बांग्लादेश में भेज दिया गया। बांग्लादेश कैसे गया वो भी एक कहानी है। वहाँ एक नदी है, तो नदी में होस पाइप लगा के, 2 होस पाइप लगा के उस पार हम लोग गए। लेकिन उसमें पैदल चल के जाने से वो गिर जाएगा नदी में, दौड़ के जाना होगा। दौड़ के वहाँ बांग्लादेश जसोर सेक्टर में हम लोग पहुँच गए। उसके पश्चात हम लोग को उसी रात बंकर खोदना पड़ा। बंकर में हम लोग प्रवेश किए और बंकर में ही रहना था। तो वहाँ मैं भाग्यवशत एक वरिष्ठ, मतलब जो 2 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, उनके साथ मेरा साझेदारी हुआ और उसी रात से वो कहानी बोलना शुरू कर दिया कि मेरा पोता 1 साल का हो गया, मेरा पोता ऐसे है वैसे हैं। कहानी दिन भर उनका पोते के बारे में ही चलता रहता था। और एक खुशी की बात ये थी कि हम लोग का सोने का निर्देश एकदम कम था कि आप लोग कम सोया करिए। क्यों? लड़ाई के मैदान में सोना, मतलब इतना सोने से हम लोग को खतरा था। तो हम लोग बातचीत करके टाइम पास करते थे रात में। तो ऐसे हुआ, लड़ाई तो मतलब कंप्लीट हो गए। लड़ाई में हम लोग जीत भी गए, लेकिन थोड़ा हम लोग को कैजुअलिटी हुआ कि जो बंकर मेरे बगल में ही था उसमें 15 आदमी शहीद हो गए। क्यों? आर्टिलरी का गोला वहाँ फेंका गया, लेकिन अपना बंकर बच गया। तो वहाँ 15 आदमी शहीद होने के पश्चात तो हम लोग फिर भी लड़ाई हम जीत गए। जब लौटे तो उनको बंदी बना के हम लोग लेके आए पानागढ़ मिलिट्री कैंप में। इसके बाद लड़ाई तो जीत के आए, लेकिन 2-3 साल के बाद मैं उस बुढ़े आदमी जो अपना मतलब रिटायर होने वाले थे, उनके घर गए मिलने के लिए। पता तो था ही, उस जमाने में इतना फोन बोन का वो नहीं चलता, तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए। जाके देखे कि वो घर में नहीं है,
तो बेटा से पूछा, बोला वो तो वृद्धाश्रम में है। वृद्धाश्रम में? बोला हाँ। कि बोला यहाँ तो अपना जगह का कमी है, एक कुत्ता भी हम पालें, वो फॉरेन डॉग है, उनको तो एक कमरा चाहिए, एसी रूम चाहिए, फलाना ठिकाना बताने लगे। तो फिर हम पता लेके वृद्धाश्रम में मिलने के लिए गए। वृद्धाश्रम में जब गए तो बहुत खुश हुआ। तो फिर पोता का कहानी तो जब लड़ाई के मैदान से शुरू हुआ, वो कहानी का अंत अभी तक नहीं हुआ। वृद्धाश्रम में रहने के बाद भी वो पोता पोता करते थे। तो 2 साल के पश्चात वो आदमी गुजर बसा, लेकिन पोता मिल नहीं पाए। अंतिम सांस लेने वक्त बेटा को तो छोड़िए, पोता भी नहीं मिले। तो ये कहानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रैंड पेरेंट्स डे का ऑब्जर्वेशन KB नंबर 1 इच्छापुर कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि नाना नानी वृद्धाश्रम में और दादा दादी वृद्धाश्रम में कम जाया करेंगे। क्यों? ये जागरूक हो रहे हैं, ये पोता पोती सब जागरूक हो रहे हैं, माता पिता सब जागरूक हो रहे हैं, वो इनको दादा दादी नाना नानी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं वक्तव्य समाप्त करने से पहले भारत माता को सैल्यूट करके अपना वक्तव्य हम समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। आदरणीय केंद्रीय विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, हेडमास्टर सर, मेरे प्रिय मित्र बनिकदा और केंद्रीय विद्यालय परिवार के सभी साथीगण, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। छात्र छात्राओं को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित ही माँ सरस्वती की असीम कृपा इन बच्चों पर रही होगी कि इस कोरोना के कठिन काल में भी वे तमाम बंधनों के बावजूद निर्बाध गति से जो है शिक्षा का अमृत प्राप्त कर रहे हैं और विद्यालयों के पठन पाठन कार्य में पूरी तरह से अन्य विद्यालयों में पठन पाठन बंद है, ये विद्यालय में पठन पाठन पूरी तरह से समाप्त करके और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो ई-लर्निंग के माध्यम से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित रखी है और सब गौरवान्वित किया है। ये सभी विद्यालय, ये सभी छात्र जो है ये गौरवान्वित हो रहे हैं इस परिवार के सदस्य होने के कारण। और आज समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है, कुछ लोग जो है अपने बूढ़े बाप माँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, इन सब के लिए जो है छोटे बच्चे ऐसा न करें, उनके नाती ऐसा न करें, इसके लिए जो है एक संदेश दिया गया। मैं इसके लिए सभी शिक्षकगणों और कार्यक्रम आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही यह कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम और विद्यालय की शिक्षा भारत माता को विश्व गुरु का स्थान दिला देगी। मैं फिर से जो है इन सभी को धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम निश्चित ही अविस्मरणीय और अतुलनीय है। इस तरह के कार्यक्रम और साथ में पढ़ाई लिखाई, यह सब जो है आप लोगों के प्रशंसनीय, आप लोगों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, प्रशंसनीय हैं। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन
Mm-hmm.